Hello students, today we will study about inner transition elements or F-block elements. Firstly, we will see the position of inner transition metals in the periodic table. You all know that group number 1 and group number 2 elements, they belong to S-block elements, while from group number 13 to group number 18 we have P-block elements, and from group number 3 to group number 12 we have transition elements or metals. And in this transition metals we further have 3D series where we fill the 3D orbitals, then we have 4D series, 5D series and 6D series transition metals. In 5D series, the first element is lanthanum. Then after lanthanum, we have to fill 4f orbitals before filling the 5D orbitals. So we place the elements in which we will fill the 4f orbitals separately and we call them lanthanoid series. लैंथेनॉइड सीरीज में हम 4f ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, सो उसको 4f सीरीज बोला जाता है. इन द सिमिलर वे 6D सीरीज के स्टार्टिंग में आता है एक्टीनियम. एक्टीनियम के बाद वी स्टार्ट फिलिंग द 5f ऑर्बिटल्स, और एक्टीनियम के बाद जब हम 5f ऑर्बिटल्स को भरते हैं देन वी गॉट एक्टिनॉइड सीरीज. और एक्टिनॉइड सीरीज में एज वी आर फिलिंग द 5f ऑर्बिटल्स, सो इसीलिए इसे 5f सीरीज बोला जाता है. एंड लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स दोनों को F ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं. सो वी हैव सीन दैट F block elements are also known as inner transition metals. They are known as inner transition metal because of their position in the periodic table due to their electronic configuration, as they involve the filling of inner subshell 4f और 5f. तो उनकी पोजीशन की वजह से उनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं. तो आपने उनकी पोजीशन भी देखी पीरियोडिक टेबल में. तो बिफोर फिलिंग d ऑर्बिटल्स हमने f ऑर्बिटल्स को फिल किया. So that's why they are known as inner transition metal. Now their journal electronic configuration. Their configuration is N-2 F1 to 14, N-1 D 0 to 1, NS2 configuration. Now you can see the elements of both the series, lanthanoid series and actinoid series. We have lanthanoid series from cerium to lutetium. Then before this lanthanoid we also have lanthanum. Although जो lanthanum है वो ट्रांजिशन मेटल है, बट इसको हम हमेशा ही लैंथेनॉइड सीरीज के साथ में पढ़ते हैं. देन वी हैव एक्टिनॉइड सीरीज. एक्टिनॉइड सीरीज जो है इट कम्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम, और इनसे पहले आता है एक्टीनियम. एक्टीनियम हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हम उसको हमेशा एक्टिनॉइड्स के साथ में पढ़ेंगे. और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक सीरीज में, लैंथेनॉइड सीरीज हो चाहे एक्टिनॉइड सीरीज हो, इसमें वी हैव 14 एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स को हम F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी स्टडी लैंथेनम अलोंग विद लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट. इसी तरह से हम एक्टीनियम को एक्टिनॉइड सीरीज के साथ में क्यों पढ़ते हैं. उसका रीज़न ये है कि जो लैंथेनम होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इट क्लोजली रिजेंबल्स लैंथेनॉइड. इसी वजह से वी इंक्लूड इट इन एनी डिस्कशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, और इसी लैंथेनम की वजह से ही लैंथेनॉइड सीरीज को नाम भी मिला है. सिमिलर वे जो
एक्टिनियम होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्टिनॉइड से मैच करती हैं, इसलिए वी इंक्लूड एक्टिनियम इन द डिस्कशन ऑफ एक्टिनॉइड्स. Now we will discuss lanthanoids and actinoids one by one. So let's start with lanthanoids. Journal electronic configuration for lanthanoid is xenon. Xenon में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 54. Xenon 4f1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2, and there are 14 elements in lanthanoid from cerium to lutetium. Now we will discuss the general characteristics of lanthanoids. Lanthanoids को lanthanide भी बोलते हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जो टॉपिक है ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन आज तक तो पूछा नहीं गया है इसमें से, बट स्टिल वी विल डू इट. सो दीज आर सिल्वरी white soft metals and they tarnish rapidly in air. Tarnish का मतलब होता है they loses their shine and they turn blackish. Their hardness increases with increasing atomic number. और जो samarium होता है it is as hard as steel. Then इनका जो melting point होता है उसकी जो range होती है it is between 1000 to 1200 Kelvin. बट जो समारियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा होता है एंड इट मेल्ट्स एट 1623 केल्विन. देन दे हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ lanthanoids. Here we will discuss lanthanoid contraction. एग्जामिनेशन के हिसाब से ये जो lanthanoid contraction टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है राइट इट्स डेफिनेशन, रीजन बिहाइंड lanthanoid contraction एंड राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ lanthanoid contraction. तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. अगर आप lanthanide कॉन्ट्रैक्शन वर्ड देखते हैं तो इसकी नाम में ही वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा होना. जब आप lanthanide सीरीज में यू मूव फ्रॉम lanthanum, lanthanum को हम lanthanide सीरीज में इंक्लूड करते हैं, हालांकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है. इस पॉइंट को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. सो जब हम lanthanum से lutetium तक मूव करते हैं देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस फ्रॉम lanthanum to lutetium and this decrease is known as lanthanoid contraction. आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ट्राइवेलेंट आयन मीन जिसके ऊपर 3+ चार्ज है उसके आयनिक रेडियाई को प्लॉट किया है ग्राफ में. देन वी विल फाइंड कि जो साइज है फ्रॉम lanthanum टू lutetium इट डिक्रीजेस. तो ये जो डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज की अगर बात करें उसमें रेगुलर नहीं होती है, लेकिन अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं ऑफ ट्राइवेलेंट आयन then this decrease is gradual. अब आता है रीजन कि what is the reason behind this decrease. हमें पता है when we move in the lanthanoid series तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं when we move from one element to another. तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इट मीन्स एक प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है. और इलेक्ट्रॉन जो है उसका काम होता है शील्डिंग का और प्रोटॉन का काम होता है न्यूक्लियर चार्ज में. जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इंक्रीज करता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है इट विल शील्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर पुल. बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग जो है वो कम है क्योंकि इट बिलोंग्स टू 4f ऑर्बिटल्स. और 4f ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे हैव डिफ्यूज शेप जिसकी वजह से दे हैव इम्परफेक्ट शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होगा. तो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा
ताकत से लास्ट इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है, जिसकी वजह से जो साइज है वो डिक्रीज करता है। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज that radii of the member of the third transition series is very similar to those of corresponding members of the second series। तो अगर आप इसका मतलब समझें, ये कह रहे हैं कि अगर आप 5D सीरीज जो होती है वो ट्रांजिशन मेटल की थर्ड सीरीज होती है, उसके एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग 4D सीरीज के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, देन दोनों का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। सेम नहीं होता बट सिमिलर होता है, बहुत ना के बराबर फर्क होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम इट्रियम वी हैव 4D सीरीज एंड फ्रॉम लेंथनम वी हैव 5D सीरीज। और 5D सीरीज में लेंथनम के बाद वी स्टार्ट फिलिंग 4f ऑर्बिटल्स, सो वी हैव लेंथेनॉइड सीरीज इन बिटवीन। और लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स के बाद ही हैफनियम का नंबर आता है, HF का नंबर आता है। तो HF में 5D ऑर्बिटल भरने से पहले वी हैड फिल्ड द 4f ऑर्बिटल्स। सो अगर हम देखें ज़िरकोनियम एंड हैफनियम, दोनों का जो साइज होता है वो सेम होता है। तो वो रीजन पूछ रहे हैं व्हाई देयर साइज इज सेम, हालांकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देन नायोबियम एंड टेंटलम, इन दोनों का भी साइज सेम होता है। इन द सिमिलर वे मोल्बिडनम एंड टंगस्टन, दोनों का साइज सेम है। तो रीजन पूछ लेते हैं, तो रीजन जो है वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप एग्जाम में अगर इतना लिख देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स को भरा जाता है जिनकी शील्डिंग पुअर होती है। इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज से लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम शील्ड नहीं कर पाते हैं, और जो साइज है वो बढ़ने की बजाय इट रिमेन ऑलमोस्ट सेम। और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज इनका रेडियाई सिमिलर है। इनका रेडियाई सिमिलर क्यों है? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और आप एग्जांपल देख सकते हैं ज़िरकोनियम एंड हैफनियम, दोनों का सिमिलर रेडियाई है, सो दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली नायोबियम एंड टेंटलम, then molybdenum and tungsten। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कि इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड, यू विल फाइंड कि जब हम लेंथनम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड तक मूव करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती है। और इस डिक्रीज के पीछे जो रीजन है इट इज फजेंस रूल। और ये फजेंस रूल जो है इसके हिसाब से अगर आप देखें वी हैव लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेंथनम टू ल्यूटीशियम जो साइज है M3+ आयन का वो डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे साइज जो होगा कटायन का डिक्रीज करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर जो है MOH बॉन्ड के वो इंक्रीज करेंगे। मीन MOH बॉन्ड तोड़ना जो होगा वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जब MOH बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा तो OH- आयन नहीं मिलेगा, सो इट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है फ्रॉम हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथनम टू ल्यूटीशियम। नाउ इन कॉन्सिक्वेंसेज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एंड द क्वेश्चन इज व्हाई सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स और लेंथेनाइड्स इज डिफिकल्ट। असल में इनकी सेपरेशन इसलिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक इनका मेल्टिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट वो लगभग सेम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग सेम क्यों होता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल सेम है, इट इज सिमिलर। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 डिग्री का, 3 डिग्री का फर्क आ जाएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में। देन विच इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट देम बाय डिस्टिलेशन, तो इसलिए इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है क्योंकि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। दे आर सिमिलर बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई। तो उनका जो रेडियाई होता है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर होता है, सेम नहीं कह रही हूँ। देयर इज अ डिक्रीज फ्रॉम लेंथनम टू लुटीशियम ऑफ एटॉमिक रेडियाई, लेकिन वो जो डिक्रीज है इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप लेंथनम की बात करें उसका जो रेडियाई है, मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ, वो लगभग 108 या 107 के करीब है, जबकि वही ल्यूटीशियम की बात करके उसका रेडियाई 85, 86 इसके करीब है, और उसके बीच में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट उनका जो रेडियाई है हम कह सकते हैं दे आर सिमिलर रेडियाई। सो we can say that due to lengthenoid contraction they have similar radii and similar physical and chemical properties, so we cannot separate them with ease. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथनॉइड्स। तो लेंथनॉइड्स को मैं पूरा नहीं लिखकर Ln सिंबल से लिखूंगी, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। Ln का मतलब है लेंथनॉइड्स। दे शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने ट्रांजिशन मेटल में पढ़ा था कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? बिकॉज एनर्जी गैप बिटवीन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल जो होता है इट इज वेरी लेस। तो दोनों d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो लेंथनॉइड्स होते हैं दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बट लिमिटेड ऑक्सीडेशन नंबर ही दिखाते हैं। तो उसका रीजन जो है इट इज कि देयर इज अ हाई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 6s ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से जो 4f सबशेल है उसके में से और इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड दे शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अगर आप देखें लेंथनॉइड्स में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, लेकिन +3 के अलावा दे कैन ऑल्सो शो +2 एंड +4। और +2 और +4 ज़्यादातर इसलिए मिल जाता है क्योंकि कई बार वी हैव एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड F सबशेल। Now in lanthanoids you can see the elements from lanthanum to lutetium। तो इन एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं इनका सिंबल लिखा है, वी हैव रिटन द कन्फिगुरेशन। एग्जाम में कन्फिगुरेशन बहुत ही कम पूछी जाती है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देन यू कैन सी कि मैंने 2+ आयन की, डाइवेलेंट आयन की भी कन्फिगुरेशन लिखी है, 3+ आयन की भी लिखी है एंड 4+ आयन की भी लिखी है। इसमें अगर आप नोटिस करें सीरियम को, सीरियम का जो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें उसकी कन्फिगरेशन है 4s0, मतलब उसका f ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो f ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसकी वजह से उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप EU का मतलब है यूरोपियम, इसको देखें तो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी मैंने उसे रेड से लिखा है। तो यूरोपियम में भी अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कन्फिगुरेशन है 4f7, f ऑर्बिटल इट इज हाफ फिल्ड, इसलिए यूरोपियम में भी हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्बियम की, Tb, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर है 65 Tb। इसमें अगर आप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्फिगुरेशन है 4f7। f7 का मतलब हो गया f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसी वजह से
टर्बियम में वी हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन द सिमिलर वे आप ये टर्बियम को देखें YB, जिसका एटॉमिक नंबर है 70 YB, तो इसमें भी अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कन्फिगुरेशन है 4f14। तो 14 का मतलब हो गया f ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। इसी वजह से YB या यटर्बियम में वी हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अपार्ट फ्रॉम +3, क्योंकि +3 तो मिलेगा ही बिकॉज इट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो हमने देखा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 के अलावा दे कैन ऑल्सो शो +2 एंड +4, लेकिन ये जो +2 और +4 होती है ये हमेशा चेंज होने की कोशिश करती है टू +3। +2 जो है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू +3। जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें टेंडेंसी है फॉर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी आयंस होंगे दे आर रिडक्टेंट या दे विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, while in +4 they will gain electron and transform to +3 oxidation state। इस वजह से जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा ऑक्सीडेंट होगा या फिर इट विल बी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब हम ऐसे आयंस देखते हैं जहाँ पे लैंथेनॉइड्स एलिमेंट दे आर शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है नेम द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले +2 देख लेते हैं। तो यूरोपियम 2+, ये +2 दिखाता है यूरोपियम बिकॉज 4f7 कन्फिगुरेशन। ऐसे ही YB मीन यटर्बियम, ये भी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इसका f ऑर्बिटल जो है इट इज फुली फिल्ड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक क्वेश्चन आ जाता है YB2+ एंड EU2+ दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, why? सो इसका आंसर होगा बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड चेंज टू their common oxidation state +3। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो TB का मतलब है टर्बियम। टर्बियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बिकॉज इसका f ऑर्बिटल यहाँ पे हाफ फिल्ड है। इन द सिमिलर वे सीरियम ये भी जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सीरियम में जो f ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है, f0 कन्फिगुरेशन है। तो एक क्वेश्चन आता है Tb4+ एंड सीरियम 4 दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, why? बिकॉज दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ये एग्जाम में लिख सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम टर्बियम एंड सीरियम एक एलिमेंट आता है PR, प्रेस्यूडियम एंड ND, नियोडेनमियम, और एक और आता है DY, डिस्प्रोसियम। ये एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो सीरियम 4+ है why it is a good analytical reagent। जो सीरियम +4 होता है इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, बट ये जो रिएक्शन होता है ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ये बहुत स्लो होता है, तो हम उसे आसानी से स्टडी कर सकते हैं और यही रीज़न है कि सीरियम 4 इज़ अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। नाउ इन लैंथेनॉइड्स वी विल डू देयर कलर। ट्रांजिशन मेटल के जो ट्राइवेलेंट आयंस होते हैं दे आर कलर्ड both in solid state as well as in their aqueous solution, although the color is faint as compared to transition metals। तो reason जो है it is FF transition, and FF transition happens due to partially filled f orbitals in lanthanoids।
जैसा कि हमने ट्रांजिशन मेटल में देखा था कि उनका d ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से dd ट्रांजिशन होती है एंड दे गेट कलर. सिमिलर वे lengthenoid ions are also colored due to FF transition, which is due to presence of partially filled F subshell. But कुछ ions ऐसे भी होते हैं जो colorless होते हैं, जैसे कि जितने भी ions with configuration 4F0 या 4F14 they will be colorless. Now they are colorless because there is no FF transition. तो एक क्वेश्चन आ सकता है, La3 plus and Lu3 plus ions are colorless. If you can see, La3 plus की configuration है 4F0, Lu3 plus की configuration है 4F14. एक का f orbital empty है, दूसरे वाले का f orbital fully filled है. So it means there will be no FF transition, that's why they are colorless. एक पॉइंट और आप ध्यान रखिए कि FF जो ट्रांजिशन होती है it is weaker and narrower than DD transition. That's why जो कलर होता है lengthenide complexes का it is fainter than those of transition metal complexes where we have DD transition. Next we will discuss about magnetic properties of lanthanoids. Lanthanoid ions, except the lanthanoid ions with configuration F0 and F14, all are paramagnetic, and they are paramagnetic due to presence of unpaired electron in F subshell, or we can say they have partially filled F subshell. तो F सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से दे आर पैरामैग्नेटिक. अगर आप La3 प्लस एंड Ce4 प्लस की बात करें तो उनकी कन्फिगुरेशन है 4F0. इन द सिमिलर वे Yb2 प्लस एंड Lu3 प्लस दोनों की कन्फिगुरेशन है 4F14. इस वजह से ये दोनों जो हैं डायामैग्नेटिक होते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई दे आर डायामैग्नेटिक. You will write their configuration कि इनकी configuration F0 या F14 है. They have no unpaired electron in the F orbitals, so diamagnetic. Next we will see the reactions of lanthanoid. Lanthanoid को मैंने Ln से लिखा है. इसकी जो इक्वेशन है NCERT में गिवन नहीं है, बट लैंथेनॉइड रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं वो आप याद रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल जो लैंथेनॉइड्स होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एंड विद हेलोजन्स लैंथेनॉइड गिव्स हैलाइड विद फॉर्मूला LnX3, एंड विद वाटर these lanthanoids give hydroxide LnOH whole thrice, and with carbon at 2773 Kelvin they form carbide with formula LnC2, and when heated with nitrogen they give nitride with formula Ln. They also react with sulfur. When heated they form sulfide with formula Ln2S3, and when burned in oxygen they form oxide with formula Ln2O3. तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स याद रखिए, बिकॉज कभी MCQ के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछा जाए what will happen या what will be produced when lanthanoid react with, for example हेलोजन के साथ react कर रहा है या water के साथ react कर रहा है, then you can answer. Now mixed metal, this is an alloy of lanthanoid, और एग्जाम में आता है name an alloy of lanthanoid, then answer will be mixed metal. इसकी कंपोजिशन जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ अ लैंथेनॉइड मेटल
up to 95% concentration and iron 5% and it also have traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. Then इसके uses आ जाते हैं. It is used in magnesium based alloy to produce bullet, shell and lighter flints. Now uses of lanthanoids. लैंथेनॉइड्स के यूजेस में सबसे पहला यूज आता है कि इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स. नेक्स्ट इज सम ऑफ लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज phosphors in television screens and similar fluorescing surfaces. Mixed metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flints. And mixed oxide of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking. Now we will do actinoids. In actinoids we have 14 elements from thorium to lawrencium. Apart from these 14 elements, we also study actinium with these elements because properties of actinium is similar to that of actinoids. एक बहुत important question आता है, why it is difficult to study actinoids as compared to lanthanoids. तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं because actinoids are radioactive elements और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है radon within bracket 5f1214 6d021 7s2. Now we will do the general characteristic of actinoids. They are silvery in appearance. They are highly reactive metals, especially when finely divided. जब आप उनको पाउडर फॉर्म में लेंगे या बहुत फाइनली डिवाइड कर देंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. सो इज द रिएक्टिविटी. नेक्स्ट आता है कि बॉइलिंग वाटर के साथ दे गिव अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड while they react with non-metals at a moderate temperature. And these metals are attacked by hydrochloric acid. लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो है इट हैज स्लाइट अफेक्ट ऑन दीज मेटल, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी वजह से वी हैव फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन दीज मेटल और नाइट्रिक एसिड फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है आफ्टर ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन. देन अल्कलीज का कोई भी एक्शन नहीं होता एक्टिनॉइड्स पे. नेक्स्ट यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ दीज मेटल्स फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंसियम. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो अभी तक तो आए नहीं हैं बट फिर भी आप देख लीजिएगा. इसमें मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है, सिंबल लिखा है मेटल का, देन इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी है. पहले तो न्यूट्रल एटम की लिखी है, देन M3+ की लिखी है, देन M4+ की लिखी है. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इन जनरल दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन +3 के अलावा दे कैन शो much more variable number of oxidation state as compared to lanthanoid. ये +3 के अलावा +4 भी दिखा देते हैं, +5 भी दिखाते हैं, +6 भी दिखाते हैं, +7 भी दिखाते हैं. लेकिन अगर आप lanthanoids की बात करें तो lanthanoid +3, +2 और +4 ही दिखा पाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. Now question arises why actinoids या actinides show more variable number of oxidation state. अगर आप इस क्वेश्चन को समझें तो ये पूछ रहे हैं कि लैंथेनॉइड्स में तो सिर्फ +3 या +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, लेकिन अगर आप एक्टिनॉइड्स को देखें उसमें +3 के अलावा +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल जाता है. वाई? तो उसका जो रीजन आता है, रीजन ये है कि 5f 6d और 7s ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी. उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है जिसकी वजह से दे विल पार्टिसिपेट इन
बॉन्डिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये है, इफ वी कंपेयर एक्टिनॉइड्स विद लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स में जो 5f ऑर्बिटल होता है, इट इज नॉट एज बरिड एज 4f ऑर्बिटल्स. जो 4f ऑर्बिटल्स हैं, दे आर मच बरिड इनसाइड. तो इस वजह से दे आर मच मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. लेकिन 5f ऑर्बिटल्स एज कंपेयर टू 4f, दे आर नॉट बरिड इनसाइड, so they can participate in bonding to greater extent. As a result, actinoid can show more variable number of oxidation states. तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो आप जरूर लिखिएगा अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है. Now in actinoids we will do ionic sizes, और ionic size में हम करेंगे actinoid contraction या actinide contraction. जैसा कि हमने लेंथेनॉइड्स में पढ़ा था कि जब हम सीरीज में मूव करते हैं इन लेंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लेंथेनम टू लुटीशियम, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ आयंस. इन अ सिमिलर वे, व्हेन वी मूव इन द सीरीज, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम और M3+ आयन इन एक्टिनॉइड सीरीज. और ये जो डिक्रीज होती है इन आयनिक और एटॉमिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंसियम, इस डिक्रीज को हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है, तो इसका वही रीजन है जो लेंथेनॉइड का रीजन था. तो लेंथेनॉइड में जो रीजन था, इट इज बाय पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन. तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी रीजन होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स. देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द सीरीज फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंसियम. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से कंपेयर करें, देन वी विल फाइंड कि जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, इट इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एज कंपेयर टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. सो उसका जो रीजन है, द रीजन इज जो शील्डिंग होती है बाय 5f इलेक्ट्रॉन, इट इज वेरी मच लेस देन 4f इलेक्ट्रॉन. 5f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बहुत ज्यादा जो है पुअरर होती है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, इट विल हैव मोर अट्रैक्शन फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से जो साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और ज्यादा एक्सटेंट तक ये जो साइज है ये कम होता चला जाएगा व्हेन वी मूव अक्रॉस द सीरीज फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंसियम. नाउ वी विल कंपेयर एक्टिनॉइड्स विद लेंथेनॉइड्स. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स, या कई बार सिमिलैरिटीज आ जाती हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स. तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं. तो अगर आप लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कंपेयर करें, यू विल फाइंड इन लेंथेनॉइड्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 4f ऑर्बिटल, while in actinoids last electron enter 5f orbitals. लेंथेनॉइड में सारे एलिमेंट एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियोएक्टिव, while in actinoid all are radioactive. Lanthanoid they do not form complexes readily because their charge to atomic size ratio is not large, while actinoid they have much greater tendency to form complexes. Then in lanthanoid the decrease in atomic sizes is not regular but decrease in size of tripositive ion is regular. तो मैंने पहले भी बताया था, अगर atomic size की बात करें तो रेगुलर डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन अगर आप M3+ की बात करें देन यू विल फाइंड अ रेगुलर डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम. लेकिन एक्टिनॉइड में चाहे एटम हो चाहे आयन हो, दोनों के साइज में जो डिक्रीज होती है अक्रॉस द सीरीज इट इज ग्रेजुअल एंड रेगुलर.
देन इन लेंथेनॉइड +3 के अलावा हमें +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, वाइल इन एक्टिनॉइड +3 के अलावा actinoids can show more number of oxidation states +4, +5, +6 and +7. Next is similarities between actinoids with lanthanoids. Similarities में देखें, both show +3 oxidation state, both involves filling of f orbitals, both shows FF transition, both show contraction in atomic or ionic radii, that is actinoid and lanthanoid contraction, and electrons of 5f orbitals in both show poor shielding effect. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल.